Hello everyone. My name is Vishwajit Bosha. I am a BTech graduate from IIT Guwahati, and today I will be giving a demo lecture on vectors. As we all know, vectors is an important part for our JEE entrances as well as for our NCERT and CBSE syllabuses. Okay, so we will have a quick recap, or we will discuss briefly about the types of vectors, the addition of vectors, and the section formula of vectors. Okay, so stay with me, and I will be speaking both in Hindi and English so that everyone will be comfortable with my presentation. Okay, so let's start with vectors. ओके, सो वेक्टर्स क्या होता है बेसिकली? जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है? सो they can ask what are vectors, okay, or they can ask what is a vector quantity. Okay, so these are the two questions, or these are the two outcomes of this chapter which we basically need to understand at first. पहले हमको इन दोनों वर्ड्स के बारे में हमको क्या है जानना है, ठीक है? उसके बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे, ठीक है? तो देखिए वेक्टर्स क्या होता है, और जनरली व्हाट आर वेक्टर्स. मान लीजिए कि देयर इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम. लेट मी टेक ए 2D सिस्टम. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है? आई हैव ड्रॉन अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट to let's say any point in space. Let's say this is space. Okay, so let's say this is space, so any point in space. Okay, so what we will come to know after looking at this line, ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लाइन किधर से किधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है? इस साइड जा रहा है. वो हमको कैसे पता चला? with the help of this arrow mark. Okay, so whenever we are asked कि what do we generally mean by vectors, okay, so we can just tell simply that any directed line segment can be called vector. Okay, any directed line segment can be called as vector. देखिए फिलहाल तो ये लाइन है, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, एक डायरेक्शन दे दी इस लाइन को, ठीक है ना? मैंने क्या बोला कि लाइन, ठीक है ये लाइन है, ओके, बट आई वांट टू ट्रेवल फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट. ओके, सो मेरे को एरो मार्क किधर देना पड़ेगा? इस साइड में, ठीक है ना? सो दिस इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, हेंस दिस विल बी ए वेक्टर. अदरवाइज दिस, इफ आई डू नॉट गिव दिस एरो मार्क, दिस विल बी simply a what? This will simply be a line until and unless I give that arrow mark. Okay, acha, and what do we mean by vector quantity? That we will come to know, and I think everybody knows what do we mean by vector quantity, but first let us discuss about what are vectors. We'll come to know about the quantities later on. Okay, so this is the brief overview of how we can understand what are generally vectors. Vectors क्या होता है? Any directed line segment in any direction. जिस direction में भी हमको देना है उस direction में एक line draw करी, उस line में एक arrow लगा दिया indicating that this line is going from this point to that point. Okay, so this is known as what? Vector. Clear? Okay, चलो. So in vectors we have to consider a very important thing. Okay, see, a vector is something which has a initial point and a terminal point. Initial point means जहाँ से start होगा, ठीक है? So arrow mark इस side है, तो vector is going from this point to this point. That means let's say vector is going from point A to point B. Okay, so what we will say A to B, A will be its initial point, or we can say starting point. Okay,
ये सब क्यों ज़रूरत है इसलिए हमको अभी अच्छे से देखना है, ठीक है ना। इसका ज़रूरत बाद में जब हम लोग सम्स करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों ये मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो एंड व्हाट इज दिस बी? बी इज टर्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग पॉइंट क्यों? बिकॉज ये लाइन यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। दिस वेक्टर, सॉरी नॉट लाइन, दिस वेक्टर इज starting from this point and it is getting terminated or it is concluding at this point, okay, or concluding point. These are various different types of terms, you can use any of them. ये ऐसे ही स्टार्ट रखना, याद रखना कि ये स्टार्ट होता है या फिनिश होता है, ठीक है ना। सो दैट इज बेसिकली अ वेक्टर। ओके, सो ये तो था वेक्टर्स क्या है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है ना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वी जनरली मैस अप विद वेक्टर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर्स? आ गया क्वेश्चन पे, हम लोग लिख देते हैं व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर क्वांटिटी, सो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज जनरली वेक्टर्स। ओके, सो नाउ let's move on to our next topic, that is types of vectors. Okay, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है ना। सो वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हियर। ओके, सो फर्स्ट कम्स जीरो वेक्टर और नाल वेक्टर, ठीक है ना। ओके, तो जीरो वेक्टर और नाल वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर इज जीरो, ठीक है ना। अभी देखो वेक्टर क्वांटिटी, अभी हमको समझना है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? एनीथिंग विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। एनीथिंग विच इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अभी देखो कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? कुछ भी नंबर हो गया, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ठीक है ना, वो मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होता है? कोई भी पाथ फॉलो कर रहा है, उस डायरेक्शन को हमको कंसिडर करना है, ठीक है ना। दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, लेट मी से कि एक वेक्टर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, ओके ना। सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। Okay, so how can we write this vector as? Let us assume कि this is a vector. I guess everybody knows this. Okay, so this is a vector. Either we can write this as a vector or we can write this as a to b vector. और ऊपर क्या होगा? a से b जा रहा है, इसलिए एरो मार्क इज फ्रॉम a to b। अगर तुम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दोगे कि b to a जा रहा है, so this will be wrong, ठीक है ना। Because this will be wrong कैसे? देखो सर ए बी और बी ए दोनों तो सेम ही होता है, रॉन्ग कैसे हो गया? आई विल शो यू, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट मी से कि लेट्स से जे ए टू बी जा रहा है, ठीक है ना, एंड लेट अस टेक दिस पॉइंट इज 1 2 एंड दिस पॉइंट इज 3 4, ठीक है, एंड इट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। सो इट्स वेक्टर फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसमें? एक्चुअली आई शुड गिव यू the different types of vectors first, but as I can assume that you guys know all this, so I am giving a little bit brief discussion about why it is A to B and not B to A. Okay, so see, A से जब B जाएगा, हमेशा क्या याद रखना, ये हेड हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, और एक बात, ये हेड और टेल भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट को हेड और टर्मिनेटिंग पॉइंट को टेल भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करेंगे कि ए से बी जब हम लोग जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा टेल से हेड को माइनस करेंगे, जो उसका डिफरेंस है, ठीक है ना। ये देखो, ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब एक्स वाई में है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या माइनस करेंगे? एक्स से एक्स को, वाई से वाई को। तो इस वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी ए बी वेक्टर? ए बी वेक्टर विल बी 3 - 1 दैट इज 2 i कैप एंड 4 - 2 दैट इज 2 j कैप, ठीक है। तो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन। आप
अगर ए बी ए वेक्टर कर लो तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमको किधर से किधर जाना है, इधर से इधर जाना है, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब हम लोग जा तो इधर से इधर रहे हैं, लेकिन वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, हम लोग उल्टे डायरेक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी रॉन्ग। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, सो इससे ये अगर आप लोगों का हो गया, सो अभी आते हैं नल या ज़ीरो वेक्टर्स पे। ओके ना, तो नल और ज़ीरो वेक्टर्स क्या होता है, ये देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, ओके, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं जिसका हेड और टेल कोलाइड हो जाए, या फिर जिसका हेड और टेल सेम हो जाए, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ज़ीरो वेक्टर। देखो कि ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है ना, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर जाके फिर घूम के वापिस ये इधर ही आ गया, ठीक है ना। सो दिस विल बी व्हाट, एज ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। देखो एक वेक्टर है ए 1,2, ठीक है ना, ये घूम फिर के फिर ए पे ही आ गया, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर। ओके, ए वेक्टर, दैट मीन्स व्हाट, इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है इसमें 1 और 2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - 1 i कैप प्लस 2 - 2 j कैप, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप, एंड एवरीवन नोज व्हाट इज 0 i कैप एंड 0 कैप, दिस इज ए ज़ीरो वेक्टर। ओके, दैट्स व्हाई we can write कि a vector which is same initial and final point, okay, is known as ज़ीरो वेक्टर, ठीक है ना। सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट जिसका होता है, जिस वेक्टर का होता है, उसी वेक्टर को अपन लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। एंड अनदर थिंग वी नीड टू नो कि ज़ीरो वेक्टर जब होगा, ऐसा नहीं है कि सर ए से बी, लेट्स से ए से ए ही आना है, ठीक है ना, ज़ीरो वेक्टर है तो ए पॉइंट से कि सर अगर ऐसे आया तभी होगा, अगर ऐसे गया तब नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर का डायरेक्शन कभी डिफाइन नहीं रहता है, ठीक है, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसको डायरेक्शन से कुछ मतलब नहीं है, इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। डायरेक्शन तो रहेगा ही, वेक्टर है तो डायरेक्शन तो रहेगा ही, लेकिन मैग्नीट्यूड ही अगर ज़ीरो हो गया तो उस वेक्टर का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब नहीं बोल सकते, इसका महत्व नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट का यहाँ पे मतलब है, ठीक है ना। सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट ज़ीरो एंड नल वेक्टर। ओके, सो इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ ये नल वेक्टर है या ज़ीरो वेक्टर है। ओके, और हमेशा याद रखना जीरो नल सेम होता है वेक्टर के केस में, जीरो और नल अलग अलग हो सकते हैं अलग केस में, बट इन वेक्टर केसेस जीरो एंड नल आर सेम थिंग। ओके, डू नॉट कन्फ्यूज योरसेल्फ विद दिस two words, they are synonyms basically, okay, for zero vectors in vector chapter. Okay, next types of vectors में अपन लोग अभी सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर्स होता है फ्री वेक्टर्स। ओके, सो व्हाट डू वी जनरली मीन बाय फ्री वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स तो ठीक है, अपन लोग को पता है कि वेक्टर्स क्या है, सही है, ठीक है। ओके, व्हाट आर फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स मीन्स जो फ्रीली घूम सकता है, ठीक है ना। ओके, यू गाइस गॉट माय पॉइंट, द वेक्टर्स व्हिच कैन मूव फ्रीली और व्हिच आर मूवेबल। ओके, ठीक है, जैसे देखो कि वेलोसिटी, इसका फ्री वेक्टर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, वेलोसिटी। ओके, लेट्स से वेलोसिटी ले लिए। जब अपन लोग एक कार में जा रहे हैं, लेट्स से, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, आई एक्चुअली डू नॉट नो हाउ टू ड्रॉ, ठीक है। ओके, इट लुक्स लाइक आवर कार, ठीक है। अपन लोग, दिस इज आवर एंटीना फॉर रेडियो। ओके ओके, चलो। सो हम लोग अभी जा रहे हैं कार में, ठीक है। अभी कार में क्या होगा कि कार में एक चीज़ होता है, ठीक है, अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर, ठीक है। उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी तेज़ी से जा रहा है, ठीक है ना।
और हम लोग बोल सकते हैं कि पकड़ लो, तुम अपनी मम्मी को लेके जा रहे हो, कोई भी अपनी मम्मी को लेके जा रहा है, ठीक है, तो तुम 100 की स्पीड पार कर गए, तो क्या बोलेगी कि स्पीड कम करो, ठीक है ना, स्पीड कम करो, स्पीड कम करो। ओके, सो स्पीड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ व्हाट, वेलोसिटी, बट स्पीड क्या हो जाता है, उसमें स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है, वो डायरेक्ट उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है ना, बट वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आपको चेंज करना पड़ता है, या डायरेक्शन को भी आपको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है ना। सो दिस वाज वेलोसिटी। अभी हम लोग आते हैं कि फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं। लेट्स से कि एक वेक्टर है ए बी, ठीक है ना, एक वेक्टर है ए बी, तो लेट्स से दिस होल बोर्ड इज अ स्पेस। ओके, एक्चुअली आई थिंक आई एम नॉट विजिबल नाइसली, जस्ट मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल कि ये बोर्ड गया है, एक स्पेस है, ठीक है ना, और इस स्पेस में हमको क्या करना है, ये एक वेक्टर है, लेट्स से कुछ भी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, ठीक है, ए बी वेक्टर है, इसको क्या करना है, इसको हमें यहाँ तक लाना है, ठीक है, लेट्स से इसको ना यहाँ तक लेके आना है, इस वेक्टर को। इसका कंसेप्ट हम लोग एडिशन में यूज़ करेंगे, तो ध्यान से देखना, इसको कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स हमेशा एडिशन ऑफ वेक्टर्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स यहाँ से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री वेक्टर्स ऐसा वेक्टर है जिसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेकिन सेम नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जस्ट इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इस जगह से इस जगह तक, ठीक है ना, इस जगह से इस जगह तक सिर्फ मूव कर सकते हैं स्पेस में, ठीक है ना। तो देखो और एक चीज़ है कि ये अगर 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो इसको भी अपन लोग को 45 डिग्री पे ही रखना पड़ेगा। अगर 45 डिग्री से हम लोग क्या कर दिए, 1 डिग्री भी इधर उधर कर दिए, तो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, और अगर इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, देन दिस वेक्टर विल नॉट बी द सेम, इट विल बी अ डिफरेंट वेक्टर इन स्पेस, ठीक है ना। तो बेसिकली कॉमन सेंस है ना। लेट्स से 1 2 इज अ वेक्टर, ठीक है ना, 1 2 इज अ वेक्टर मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट है और वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट है। लेट्स से दिस वेक्टर इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, दिस इज 1 2 वेक्टर, ठीक है। अगर मेरे को क्या करना है, इस वेक्टर को यहाँ तक लाना है, अगर मैंने क्या कर दिया, इस एंगल को 47 डिग्री कर दी, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ना, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, है ना। दैट मीन्स दिस वेक्टर विल नॉट बी द सेम, दैट मीन्स concept of free vectors is valid, हाँ, concept of free vectors is valid, but there is a condition, condition क्या है कि अपन लोग इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकते, ओके ना। सो दिस वाज द concept of free vectors. So we can say any movable vector is known as free vector, ठीक है ना, any movable vector is known as what, free vector, sorry. Okay, so I hope everybody understood. Okay, so ज़्यादा डीप जाने का ज़रूरत है नहीं, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्चुअली, फ्री कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। हालांकि हम लोग क्या सोचते हैं कि सर फ्री वेक्टर्स है तो ठीक है, फ्री वेक्टर्स है उसमें कोई लेना देना है नहीं, यू विल गेट टू नो द कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स इन योर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, सो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। अच्छा, ओके, नेक्स्ट आता है एक इजी वेक्टर, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है ना, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ओके, तो लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स का ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। लोकलाइज्ड वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो जिस वेक्टर को हम लोग मूव नहीं कर सकते, और या फिर बोल सकते हैं कि जो वेक्टर फिक्स्ड है, ठीक है ना, फिक्स्ड वेक्टर इन स्पेस, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है। सो दैट इज लोकलाइज्ड वेक्टर, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। लेट्स से इसका एग्जांपल लिख लीजिए, इसका एग्जांपल होगा फोर्स, फोर्स इज ए लोकलाइज्ड वेक्टर, ओके। और फ्री वेक्टर्स का क्या था, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ए फ्री वेक्टर एंड फोर्स इज ए व्हाट, लोकलाइज्ड वेक्टर, ओके। नेक्स्ट इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, दीज आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव
सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर्स। लेट्स से देयर इज अ वेक्टर, व्हाट कैन आई टेक, ओके, लेट्स से 3 4, 2D में ही है अपन लोग, ठीक है ना, 3D में अभी घुसे नहीं अंदर, दैट विल बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। लेट्स फर्स्ट फिनिश द 2D पार्ट, ओके। लेट्स से 3 4 इज अ वेक्टर, ओके। तो 3 4 अगर वेक्टर है तो इसका इक्वल वेक्टर्स क्या होगा, ऐसा एक वेक्टर होना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। एग्री? अच्छा, तो 3 4 हो गया, तो हम लोग अब अगर लिख दे कि 3 4 ही तो है, तो इसको हम लोग तो 4 3 भी लिख सकते हैं, नहीं। ओके, सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मीन्स 3 4 है तो 3 4 ही रहेगा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज कंफ्यूज विद इक्वल वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल, इक्वल वेक्टर्स मीन्स इक्वल होंगे, 3 4 है तो 3 4 ही 1000 बार होगा, ठीक है। लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स क्या है, 3 4 है, 3 4 के मल्टीपल्स में जितने वेक्टर्स आएंगे, और या फिर 3 4 के पैरेलल जितने वेक्टर्स प्लेस हो सकते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। लेट्स से 3 4 है, ओके ओके, ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हाँ सही है, तो फिर नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर से आएंगे। ओके, सो व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। इसका मैं डेफिनेशन दे देता हूँ, बुक इज डेफिनेशन। लेट्स से इफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स are placed parallel, ठीक है, इफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आर प्लेस्ड पैरेलल, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ए अगर एक वेक्टर है तो उसका अगर कोलिनियर वेक्टर होना चाहिए, तो बी एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए का लैम्डा टाइम्स बी होगा, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, लेट मी रब दिस थिंग, ओके। सो ए का लैम्डा टाइम्स बी होगा। देखो, let me draw an axis, don't get bored, huh? Actually this is a bit, I find it interesting according to myself, okay, so try to make yourself comfortable, you guys will also find it interesting, okay। Let's say there is a vector, a vector is, let's say मैं लेता हूँ 1 2 1 2 1 2, अच्छा ले लिया 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 1 2 पॉइंट कहाँ होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है ना, ये वेक्टर्स हो गया, 1 2 वेक्टर हो गया। अभी लेट से मैं क्या करता हूँ कि ए वेक्टर ले लिया मैं, 1 2 is a vector, okay। Let's say I multiply 2 with a, then this will be 2 times of 1 comma 2, then this vector will be 2 comma 4। बेसिकली किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है, 1 2 is what, 1 2 is बेसिकली 1 i कैप 2 j कैप, तो मैंने a वेक्टर क्या लिया, 1 i कैप प्लस 2 j कैप, ठीक है ना। अभी क्या किया मैंने, एक स्केलर, this is a scalar, everybody knows ना, a constant value is always a scalar, or you can say any scalar is a constant, okay। so 2 मैंने a के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 is 1 i कैप प्लस 2 j कैप, ठीक है ना। so this will become 2 i कैप प्लस 4 j कैप, उसी को मैंने ऐसे लिखा है कि it is 2 4, okay। so where is 2 4, देखो this is 2 and this is 4, so this will be somewhat in this place, ओके। लेट से मैंने क्या किया, इसमें फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, इट विल बी 3 6, सो दिस इज 3 दिस इज 6। देखो एक पैटर्न में नहीं हो रहा है, ठीक है ना, एक पैटर्न में हो रहा है, ठीक है ना। सो दीज आर ऑल पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, लेट से मैं एक 1 2 ये पॉइंट है, लेट से मैंने इसको कनेक्ट कर दी, ठीक है। लेट से दिस पॉइंट इज 2 4,
दिस पॉइंट इज 3,6. सो ऐसे जा रहा है, ठीक है ना. सो पार्डन मी फॉर ड्राइंग, ऐसा नहीं होगा, बेंड नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट है, ठीक है ना. दीज आर ऑल पैरेलल वेक्टर्स. सो हमेशा याद रखना कि जो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स. ओके, अगर एक वेक्टर ऐसे हो गया, ठीक है, एक वेक्टर इस साइड हो गया, सो दीज आर पैरेलल वेक्टर्स, दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना. द वेक्टर्स विच आर पैरेलल आर ऑलवेज टर्म्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स. इसमें आएंगे बाद में, हम लोग पढ़ेंगे कि नेगेटिव डायरेक्शन होने से क्या होता है, सेम डायरेक्शन होने से क्या होता है, वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है नहीं. जस्ट हमारा अभी मैटर ऑफ कंसर्न है कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है ना, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है. सो उसी को समझना है, ठीक है ना. सो दिस वाज ऑल अबाउट कोलिनियर वेक्टर्स. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड. कोलिनियर वेक्टर्स, देखो अगर ऐसे किसी को अगर समझ में भी ना आए, आई एम गिविंग यू अ ट्रिक. Okay, that is not actually a trick. If I call it a trick, it will be dumb. देखो, एक वेक्टर दिया है, ठीक है ना, ए वेक्टर दिया है, ठीक है तुमको. लेट्स से आई कैप जे कैप में ही लिखता हूँ मैं, 2i कैप प्लस 7j कैप, ठीक है. इट्स ए मेड अप क्वेश्चन, यू विल नॉट फाइंड इट एनी बुक. जैसे तुम लोग को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ. ए वेक्टर क्या होता है, 2i कैप प्लस 7j कैप, ठीक है. लेट्स से वी एज्यूम्ड, लेट्स से मैंने बी वेक्टर दिया एक, ठीक है. तो इसमें बोला कि 6i कैप प्लस 21j कैप. अभी बताओ कि आर ए एंड बी कोलिनियर, ठीक है. तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग को पता है फॉर्मूला क्या है कि अगर ए और बी को कोलिनियर होना है तो ए को लैम्डा टाइम्स बी होना पड़ेगा, ठीक है ना. ए को क्या होना पड़ेगा, लैम्डा टाइम्स बी होना पड़ेगा. तो देखो ए वेक्टर क्या है, दिस 2i कैप प्लस 7j कैप. अभी देखो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 6i कैप प्लस 21j कैप. यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस क्या आ जाएगा ये 7j कैप, ठीक है. तो ये क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स, ठीक है ना. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी है या b इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी ए है, सेम होता है, ठीक है ना, कुछ भी है. बट वन शुड बी अ मल्टीपल ऑफ अनदर, ठीक है ना. देन ओनली वी कैन से दैट दिस वेक्टर इज ए व्हाट, कोलिनियर वेक्टर ऑफ द अदर वेक्टर. या फिर इसमें देखो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 7j कैप. इसमें 3 टाइम्स ऑफ ए कर दे तो ये क्या आ जाएगा, 6i कैप प्लस 21j कैप. सो दैट मीन्स विच इज इक्वल्स टू बी वेक्टर. सो बी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए. लैम्डा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, ठीक है. सो दिस इज द रियल कंसेप्ट बिहाइंड कोलिनियर वेक्टर्स. अपन लोगों को याद रखना है ये, ठीक है ना. दिस विल बी यूज्ड इन परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशंस एंड सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस. ओके, अच्छा. चलो, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स. ठीक है ना. नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है. सो व्हाट डू वी जनरली मीन बाय कोप्लेनर वेक्टर्स. सो कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेन, कोप्लेन मतलब कॉमन प्लेन, ठीक है. तो कोप्लेनर मतलब क्या होगा, कॉमन प्लेन, ठीक है. अगर एक वेक्टर सेम प्लेन में है, ठीक है ना, एक नहीं सैकड़ों वेक्टर्स हो सकते हैं. अगर वो वेक्टर्स सेम प्लेन में है देन वी विल कॉल दोज वेक्टर्स एज व्हाट, कोप्लेनर वेक्टर्स. लेट्स से ये x ये y, सभी को पता है, ये y ये x, ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट, एक्स वाई प्लेन, ठीक है. सो दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना. लेट्स से मैं ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ करूँ, ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे ऐसे ऐसे. बट देखो ये वेक्टर्स कुछ भी हो, ठीक है ना, हमको उससे मतलब नहीं है. ये सारे वेक्टर्स को एक ही प्लेन पे होना चाहिए. एंड यस दे आर इन एक्स वाई प्लेन. दैट मीन्स ऑल दिस वेक्टर्स आर व्हाट, कोप्लेनर वेक्टर्स. क्लियर, आया समझ में. ओके. तो
So I hope you guys have understood what are the different types of vectors. ठीक है, इलाबोरेटली होगा, बाद में होगा, ठीक है ना. अभी हमको सिर्फ इससे मतलब है कि वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हम सीख लिया, ठीक है ना. ओके, so let's move on to the next topic. So we have already covered the types of vectors parts. Okay, so we should know the types of vectors parts before going to this topic. So the next topic is our addition of vectors. Okay, और बेसिकली वेक्टर एडिशन बुक्स की बातें हैं, ठीक है ना. कहीं पे ये लिखा होता है, कहीं पे वो लिखा होता है, डजेंट मैटर. द मेन थिंग इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस. ओके, सो फर्स्ट आता है ट्रायंगल लॉ. ओके, जस्ट लेट मी डू वन थिंग. एक ही साथ में कर लेंगे सब कुछ, ठीक है ना. अच्छा, एंड पार्डन मी फॉर कीपिंग स्मॉल बोर्ड. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, नेक्स्ट होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. थर्ड होगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सॉरी, एक एक करके सीखेंगे अपन लोग कि क्या होता है क्या नहीं होता है. ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स जानने से पहले आई सजेस्ट यू कि एक बार कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स देख लो. ठीक है ना, मैंने बोला था पहले भी, तो कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स जान लो. ठीक है ना, वी ऑल नो. ठीक है, हमको पता है कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स क्या है. सर चलिए आगे. ओके, मूविंग ऑन. देखो, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, बेसिकली रिजल्टेंट फॉर्म देते हैं. ठीक है ना, इससे आंसर क्या आता है, और इससे बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ दो ट्रायंगल्स को मिला के जो लॉ होता है उसी को पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं. बेसिकली देख लो, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर परफेक्टली सेम ही बोल सकते हैं. ठीक है ना, बट दिस इज फ्रॉम ए पैरेललोग्राम, दिस इज फ्रॉम ए ट्रायंगल. ओके, सो and this thing is already, you guys know, it has been already used in your physics part. okay, resultant निकालने के लिए डायरेक्शन, ठीक है ना, x डायरेक्शन y डायरेक्शन जा रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा. ओके, सो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, देखो, लेट्स से कि हम लोग एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे कैसे होता है क्या होता है. ओके, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर, ए वेक्टर, this is our a vector. okay, let's say there is another vector which is in this direction, which is b vector. okay, so अभी हम लोग को क्या करना है कि एक ट्रायंगल फॉर्म करवाना है. ठीक है ना, जिसका सबसे लॉन्ग जो लेंथ होगा या लॉन्ग जो हैंड होगा उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलते हैं. ठीक है, पैरेललोग्राम में जिसको डायगोनल बोला जाता है. ठीक है, और ट्रायंगल में जिसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है. ठीक है, देखो अभी लेट्स से कि ये फ्री वेक्टर से ये भी फ्री वेक्टर है, दे आर मूवेबल वेक्टर्स. सो व्हाट आई कैन डू कि आई कैन टेक दिस वेक्टर आउट फ्रॉम हियर, इसको निकाल लेंगे यहाँ से, एंड वी प्लेस दिस वेक्टर हियर विदाउट चेंजिंग इट्स व्हाट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका मैं चेंज नहीं किया हूँ. ठीक है, एंड अगेन व्हाट वी विल डू कि इसका जो हेड है उसको लाके मैं सेम यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा. पैरेलल वेक्टर्स ही तो है.
ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, क्या ऐसा हो गया क्या कि सर इसके नीचे तो नहीं है, दैट मीन्स दैट इज नॉट पैरेलल? नो, इट इज़ नॉट दैट केस। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ इन द सेम एंगल विद द एक्स एक्सिस, इट इज़ पैरेलल, ठीक है ना। इसको यहाँ पे रखो, ये 45 पे है, इसको यहाँ पे रखो, ये 45 पे है, इसको यहाँ पे रखो, ये 45 पे है, ठीक है ना। दैट मीन्स ऑल दिस थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर? सो इसको लाके मैं क्या करूँगा, इसका जो हेड है, सॉरी इसके टेल पे, इसके टेल पे, ए वेक्टर के टेल पे मैं बी वेक्टर का हेड कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। वी कैन डू, ऑब्वियसली वी कैन डू। सी दिस इज आवर बी वेक्टर। ओके, जो इसका जो रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज आएगा, this is our C vector. So we can say from, so this is a triangle is formed. Okay, so this is the triangle law. So we can say, we can conclude from here that C vector is equals to A vector plus B vector. अभी इसका opposite भी होगा, but for now let us only stick to the positive part. ठीक है, so this is A vector, this is B vector. ओके, सो इसका रिजल्टेंट जो आया तो वो क्या होगा, दिस इज ए सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, सो सी हाउ कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स हैज बीन यूज्ड हियर। ये वेक्टर यहाँ पे था, इट केम, मैंने इसको यहाँ पे लाके डाल दिया। ये वेक्टर यहाँ पे था, इसको यहाँ से यहाँ तक लाया, ठीक है, कनेक्ट किया, फिर उसका जो हाइपोटेन्यूज था दैट विल गिव आवर रिजल्टेंट। ओके, सेम विथ आवर पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, देखो कि लेट्स से यहाँ पे एक वेक्टर ए है, यहाँ पे एक वेक्टर बी है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लाया, ठीक है, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ ए वेक्टर को, और इस वेक्टर को देखो कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ज़्यादा उस पर मत जाना, स्केलिंग पे मत जाना, स्केलिंग थोड़ा गलत है, बिकॉज दिस इज़ अ हैंड। ओके, सो मशीन में गलतियाँ नहीं हो सकता है, हाथ में गलतियाँ हो सकता है, ठीक है ना। सो कंसिडर दैट, बट व्हाट वी एज्यूम दैट direction not changing, magnitude not changing. Okay, so what can we do again? देखो इस वेक्टर को यहाँ तक लाया, सेम ऐसे वेक्टर्स को मैं क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे किया, ठीक है ना, और सेम ए वेक्टर को मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया। तो इसका जो डायगोनल आएगा उसी को वही क्या इंडिकेट करेगा। सी दिस इज डायगोनल, let's say this is our C vector, so diagonal will give the resultant in parallelogram. Okay, and अगर तुम लोग को पूछ ले कि पैरेललोग्राम में कौन से चीज़ से तुमको रिजल्टेंट मिलता है, तो बोलना कि सर डायगोनल से मिलेगा, ठीक है ना। इसमें तो डायरेक्ट क्या बोला, हाइपोटेन्यूज से मिलेगा, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है नहीं, तो इसमें डायगोनल तो आएगा नहीं, ठीक है ना। सो दिस इज द लेंथेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे लंबा पार्ट, ठीक है ना, दैट इज द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो दिस इज आवर डायगोनल। तो सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। सो इन दिस वे कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स आर यूज्ड इन बोथ पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू पॉलीगन लॉ। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस, ठीक है, नॉट सो हैवी टू मेमोराइज और नॉट सो टफ, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ आया कहाँ से, आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स से आया है। फ्री वेक्टर्स होते हैं तो उस वेक्टर्स को लाके हम लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे भी करना है आप लोगों को कनेक्ट करते हैं, फिर उससे रिजल्टेंट आता है। पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट क्या होता है, डायगोनल, ठीक है। ट्रायंगल में रिजल्टेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, अभी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन व्हाट डज इट सिग्निफाई। देखो एक पॉलीगन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसा देखो, दिस इज दिस, ओके, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। ओके, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर इज दैट द एडिशन ऑफ ऑल द थ्री वेक्टर्स, मैं समझाऊंगा तुम लोग को कि कैसे होता है, ठीक है ना। पहले लिख लो कि एडिशन ऑफ ऑल द थ्री वेक्टर्स विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 भी एक वेक्टर होता है, वेक्टर साइन दो ना दो, 0 0 ही है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होता है, क्यों होता है सर, अच्छा सॉरी, तो कैसे होता है, देखो इसमें कंसेप्ट यूज होता है नल वेक्टर्स का, ठीक है। नल वेक्टर्स और जीरो वेक्टर्स कुछ भी बोल लो, अपन लोगों को याद है, ठीक है। वी आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वी नो। ओके, चलो, तो क्या होता है इसमें कि
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि तीनों वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तीनों वेक्टर्स को ऐड क्यों कर रहे हैं? तीनों वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब हम तीनों वेक्टर्स को वेक्टर्स से रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो रिजल्टेंट क्या होगा, देखो ए वेक्टर्स का मतलब है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, ठीक है ना। लेट्स से आई मार्क दिस पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर गया इस साइड में, फिर क्या हुआ, बी बोला कि भाई इधर जाना है, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर सी बोला कि सर भाई यहाँ से यहाँ तक आना है, ओके चलो यहाँ पे आ गए। तो घूम फिर के मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट ही तो आ गया, ठीक है ना। आई ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड अगेन व्हाट, आई अगेन केम बैक टू माई स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स हेड इज इक्वल्स टू टेल, और जहाँ पे हेड इक्वल्स टू टेल होता है वो क्या हो जाता है, 0 वेक्टर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो डेट मीन्स अगर मैं इसको एक वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ठीक है ना, दिस इज द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं लेट्स से साइड के टर्म्स में लिखूं कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर्स प्लस सी ए वेक्टर। यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान रखना, ठीक है ना, ए सी मत लिख देना, यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो दिस इज सी ए वेक्टर, सो दिस इज इक्वल्स टू 0, ओके, ठीक है। और इसको अगर हम और छोटा करके लिखना चाहें तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका हेड है ए और इसका टेल क्या है, ए ही है, ठीक है ना। सो दिस विल बी ए वेक्टर एंड हमेशा जिस वेक्टर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है उसी वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नल वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग टिल नाउ, ठीक है। ओके चलो, let us move on to the next topic. Okay, vectors. Okay, our next topic is position vector, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, पोजीशन वेक्टर लेट्स से पोजीशन क्या होता है अपन सबको मालूम है, ठीक है ना। व्हाट इज योर पोजीशन, कहाँ पे हो तुम, ठीक है ना, कहाँ पे हो तुम, वेयर आर यू, दैट सिग्निफाइज योर पोजीशन in physical world, okay। so what is position, let's say कि ये एक x है, x मतलब दिस इज x डायरेक्शन, सॉरी दिस इज योर x एक्सिस और x डायरेक्शन, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज y डायरेक्शन, ओरिजिन x डायरेक्शन, ओके। अच्छा, अगर लेट्स से मैथमेटिक्स की बात छोड़ो, लेट्स से विल ड्रॉ सम कंक्लूजन फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ, ओके, उसके बाद हम लोग इसको सीखेंगे। लेट्स से दिस इज माय होम, I have trees also at my home, okay, so this is my home and I want to go to, let's say, a fruit shop, तो फ्रूट शॉप कहाँ पे होगा, बाजार पे होगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज बाजार एंड लेट्स से दिस इज माय फ्रूट शॉप, ठीक है। तो मेरे को कैसे जाना होता है कि दिस इज माय हाउस, आई हैव टू टेक समथिंग रिक्शा और आई हैव बाइक, ओके, तो आई विल टेक माई बाइक, सो आई हैव टू गो लाइक दिस। अपन को गली से निकलना है, फिर ऐसे जाके एक स्कूल है, उस स्कूल को क्रॉस करके फिर एक लेट्स से एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को क्रॉस करके फिर अपन को कहाँ पे आना है, बाज़ार पे फ्रूट शॉप तक आना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या हो गया कि मेरी मम्मी ने बोला कि फ्रूट शॉप पे जाओ, एप्पल लेके आओ, ठीक है ना, ओके, आई एम गोइंग। क्या हुआ कि मैं जब एग्जैक्टली नहीं स्कूल के पास पहुंचा, ठीक है ना, तब फिर कॉल आया मम्मी का कि 1 किलो संतरे भी ले आना, ठीक है ना, दिस इज़ द सीजन व्हेन वी गेट ऑरेंजेस, ओके। तो उन्होंने बोला कि 1 किलो संतरे भी ले आना, ठीक है ना। तो व्हाट आई टोल्ड, ओके। फिर पहले पूछा उन्होंने कि वेयर आर यू, ऐसा भी हो सकता है कि मैं लेके फिर वापस आ रहा हूँ, सिंस ही विल नॉट बॉदर मी टेलिंग अबाउट दैट। सो पहले पूछा कि वेयर आर यू, आई हैव टू टेल हर ए पोजिशन ना, ठीक है ना, आई हैव टू टेल हर ए पोजिशन कि मैं कहाँ पे हूँ, देन ओनली शी कैन गिव हर व्हाट डिसीजन, ओके। सो मैंने बोला कि आई एम नियर स्कूल, ठीक है ना। अभी कौन सा क्या स्कूल है, वी डोंट बॉदर अबाउट दैट। तो देन शी टोल्ड दैट
bring 1 kilo of oranges also. Okay, then I went and brought 1 kilo of apple and 1 kilo of oranges. Okay, so same is the case of पोजिशन वेक्टर्स. पोजिशन वेक्टर्स क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट मैंने दाग दी यहाँ पे, ठीक है ना. लेट्स से दिस पॉइंट इज 1,3, ठीक है. सो 1,3 क्या है, दिस इज जस्ट ए पॉइंट इन ए 2D स्पेस, ठीक है ना. ये 2D स्पेस है बिकॉज दिस इज XY प्लेन. दिस इज जस्ट ए पॉइंट, ठीक है. दिस इज जस्ट ए पॉइंट इन 2D स्पेस, और वी कैन से दिस इज जस्ट ए पॉइंट इन XY प्लेन. Okay, so what we are going to do, if I ask what is the position of this vector, let's say this is B vector, this is B vector, what is the position of B vector, sorry, extremely sorry, this is not B vector, let's say this is point B, let's say this is point B. Okay, then what we need to do, we have to connect this point from origin. Clear? When we connect, so sorry, I'm not good at drawing, so please consider. So we have to connect this point from origin. Okay, from origin से लेके B point तक, then only we will be able to identify what will be the position of this point B. Then we can say that देखो origin से जब हमने B तक connect कर ली, तो then this point this line becomes a vector, ठीक है ना. Y vector, see y vector, many a times we get questions, that is we do not get questions but this should be known कि इसी को क्यों वेक्टर बोलेंगे, लाइन ही तो है. नहीं, देखो इसी को वेक्टर इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम लोग ओरिजिन से सिर्फ 1,3 पॉइंट तक ही जा रहे हैं, एंड इन स्पेस एंड इन होल यूनिवर्स 1,3 इन XY स्पेस इज ओनली 1 पॉइंट, ठीक है ना. 1,3 दूसरा कोई पॉइंट हो नहीं सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि हजारों सैकड़ों ऐसे पॉइंट है जो 1,3 है, नहीं. 1,3 इज ओनली 1 पॉइंट इन XY प्लेन. दैट्स वाई हम लोग एक ही पॉइंट को कंसिडर करके ओरिजिन से जा रहे हैं. दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट बी. ओके, जैसे हम लोग का स्पेस शटल जाता है ना मार्स, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में मार्स एक ही है. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बट अकॉर्डिंग टू मी पूरे यूनिवर्स में मार्स एक ही है. अगर अर्थ से मार्स तक जाना तो उसी कोऑर्डिनेट में जाना पड़ेगा, उसी कोऑर्डिनेट में रॉकेट को भेजना पड़ेगा, स्पेस शटल को भेजना पड़ेगा, ठीक है ना. वी आर एमिंग फॉर दैट मार्स प्लैनेट. दैट मीन्स व्हाट, ए पोजीशन वेक्टर शुड बी ड्रॉन, ठीक है. उस पोजीशन, उसी वेक्टर को क्या बोला जाता है, ए पोजीशन वेक्टर. सो दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड ए पोजीशन वेक्टर, ठीक है. बिकॉज with this vector we can find out the position of point B. Okay, and this can be represented by OB vector, ठीक है ना. this can be represented by OB vector, ठीक है. एक्चुअली XY प्लेन लिया है मैंने, बट दिस वर्क्स फॉर 3D प्लेन, ठीक है ना. सो इसका अगर हम लोग जनरल डेफिनेशन देना चाहे इन बुकिश नॉलेज, ओके, वी कैन से टू स्पेसिफाई एनी पॉइंट इन ए 3D स्पेस. ओके, टू स्पेसिफाई एनी पॉइंट इन ए 3D स्पेस, ओके, वी यूज पोजिशन वेक्टर्स. खत्म, कहानी खत्म, ठीक है सर, ठीक है यहाँ पे. सो दिस वाज अबाउट द पोजीशन वेक्टर. ओके, सो लेट अस डू ए सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. ओके, जस्ट ए लिटिल सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो let's say this is point A and this is point B. Okay, so this is point A and this is point B. Okay, अगर मेरे को निकालना है कि पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आई हैव टू कनेक्ट द ओरिजिन फ्रॉम टू A, आई हैव टू कनेक्ट द ओरिजिन फ्रॉम origin to B, ठीक है. so this will be OA will be a position vector A, OB will be position vector B, or you can represent it by small b vector, smaller vector, कुछ भी, depends upon you how you are comfortable. Okay, and now
see, if I am going from point A to B, then how will I write A B vector? ठीक है ना. So this is all we should know about position vectors. ठीक है, बाद में यूज होगा, we will do numericals, then it will be clear. Okay, okay, okay. Then after that, I forgot to mention one point. It is also a type of vector which are known as unit vectors. Unit का मतलब क्या है? Unit in vectors means magnitude is equals to 1. ठीक है. So always remember the vectors which have magnitude equals to 1 are known as what? Are known as unit vectors. Clear? ठीक है. अभी यूनिट वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होगा? लेट्स से देयर इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप. आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन 2D प्लेन. प्लीज डू नॉट पजल अप इन 3D. सर 3D में नहीं, 3D में भी होगा, बट आई एम कीपिंग इट ब्रीफली टिल 2D प्लेन. ओके, सो ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप. ठीक है. अभी देखो, ए वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप. ठीक है. तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए कैप. ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ओके, सो ए वेक्टर विल बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ओके, सो दिस विल बी व्हाट? आवर यूनिट वेक्टर. फिर यहाँ पे दाग देना क्वेश्चन. ठीक है ना. सो दिस विल बी व्हाट? ए वेक्टर विल बी आई कैप प्लस जे कैप, एंड दिस विल बी व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? 1 + 1 इज इक्वल्स टू 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप. ठीक है ना. अभी अगर कोई पूछे कि इज दिस ए यूनिट वेक्टर और नॉट, सो क्या करना है? दिस इज आवर यूनिट वेक्टर. ओके, मतलब प्रूफ करने के लिए दिस इज आवर यूनिट वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड ले लो. मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? √, इसका कितना स्क्वायर और इसका भी कितना स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा? √1/2 + 1/2 √1 which is equals to 1. Yes, this is our unit vector. Okay, so this was the concept of unit vectors along with position vectors. I hope you all understood. Okay, so I think this will be enough for today. Hope you like. So I think you like my lecture. So thank you so much, and we will meet again in the next lecture. Thank you.